Namaskaram, I am Dr. Shivashankar Dalai, Chief of Neurovascular Intervention at Medicover Hospital, Visakhapatnam. Today we have a very common case. When you encounter, आप ऐसे केस बहुत देखते हैं, तो बेसिकली पेशेंट को क्या हुआ इसको जानने के लिए हम उनके बेटे से बात करेंगे जो खुद एक डॉक्टर है इंटेंसिव केयर में, राइट? सो डॉक्टर मुन्ना इज विद अस. सो इनका फादर को प्रॉब्लम है, जिसको क्या प्रॉब्लम हुआ फादर जी को बताइए. Sir, I'm Dr. Munna, working as a critical care intensivist. He's my father. Where you are working? I'm working in Hyderabad, sir. Hyderabad, okay. So he's my father. 3 years back, he had an accident. That time he had the subarachnoid hemorrhage and subdural hemorrhage also, but there's no surgically managed. It was managed medically only. Then after that, he was recovered well. He's doing good. Everything is fine. But last 1 month back, he had one episode of stroke. Stroke. With Okay. the symptoms of right deviation of mouth and Okay. right hand weakness also, Right hand weakness. and right deviation of mouth also with slurring of speech. Mm-hmm. So we took him for a consultation to neurophysician. They advised MRI. In that he has some fibrofatty plaque in the left internal carotid region. Then they suggested carotid Doppler also. In that he has an internal carotid artery stenosis of around some 80 to 85%. Then post 2-3 days later he had one mild episode of drowsiness followed by hyponatremia, and he was admitted in hospital for 1 week. Then correction was done. Then later on planning for stunting. Then I came to know about you, sir. So जब हमारे पास ये आए हम लोग एंजियोग्राम किए और इनका सिम्टम इतना सीवियर है कि कल हम लोग एंजियोग्राम किए, कल शाम को, कल रात को फिर से एक बार एपिसोड ऑफ वीकनेस हो गया. इसका मतलब ये होता है कि राइट साइड में वीक हो जाते हैं एंड रिकवर करते हैं. कुछ ही देर के बाद, कुछ दिन के बाद फिर से वीकनेस होता है. तो इसको हम लोग जब एंजियोग्राम किए, ये कैरोटिड आर्टरी का एंजियोग्राम है. इनका कैरोटिड का एक वेरी स्पेशल है कि दोनों कैरोटिड एक साथ निकल रहा है. ये कल का एंजियोग्राम है. तो राइट साइड का जो एंजियोग्राम है वो बिल्कुल नॉर्मल है. देखिए ये राइट साइड का एंजियोग्राम है कैरोटिड का, जो एक कॉमन कैरोटिड है. ये दो में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड. इंटरनल कैरोटिड ब्रेन में जाता है, ये बरोबर है, ठीक है. लेकिन जब हम ये लेफ्ट साइड का कैरोटिड का एंजियोग्राम किए तो देखे उनको ऑलमोस्ट लाइक 95% स्टेनोसिस है, एक फ्लोटिंग थ्रोम्बस है. ये जो ब्रेन के अंदर जा रहा है इसमें बहुत ज्यादा स्टेनोसिस है. ये कल शाम को हम लोग 7:20 का एंजियोग्राम किए. फिर उनको रात को 9, साढ़े 9 बजे वीकनेस हुआ फिर से और एक बार. तो हम डिसाइड किए और लेट नहीं करेंगे, इनको स्टेंटिंग हम करेंगे. चलिए देखते हैं हम लोग उसको ये क्रिटिकल स्टेनोसिस को कैसे स्टेंटिंग करेंगे. इनसे थोड़ा सा बात कीजिए. Since from almost 1 month we are struggling with this thing, but I don't know where to take my father for the surgery. Then I came to know about Shivashankar Dalai sir through one more doctor from Hyderabad. So then immediately I thought of taking him here. There are so many opinions I got from my friends to take to some other big institutes and all, but I came to know about sir very well. He did lot of surgeries. So I just wanted to take my father here. So yesterday we came here. Angiography was done and the stenosis was very bad, so I suggested to go for stunting. So we are agreed for that and we are doing the stunting. So hope for the best. So, can I have this for me? Can I have that speaker on? चलिए. नमस्ते जी, नमस्ते. ठीक है सर, प्रसाद जी. तो ये लोकल एनेस्थेसिया में ये प्रोसीजर किया जाएगा. जनरली कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग 99% हम लोकल एनेस्थेसिया में करते हैं. टेबल प्रसाद प्लीज. तो एज यूजुअल पेशेंट को हम लोग एंटीप्लेटलेट पे लोड किए. उनका वाइटल्स मॉनिटर किया जा रहा है. कमल प्रसाद. मेरे साथ है एटर्नली ब्यूटीफुल पार्वती.
and the smart boy Prasad, the cath lab technologist. गौरी है, स्मार्ट बॉय श्रीनु है, चल बैठकर हम लोग कोशिश करेंगे कि लेफ्ट कैरोटिड में हम जाए. सो इसका बोवाइन आर्च है, राइट एंड लेफ्ट कैरोटिड दोनों एक साथ निकल रहे हैं, जो कि हम लोग एंजियोग्राम करके कल देखा है. बेटा टेबल. सो ये थोड़ा ट्रिकी रहता है लेफ्ट में जाने के लिए. Slow. Lateral, please. Table. Table down. तो इनको राइट पिट्रस आइसिया में भी 30 to 40% एक शॉर्ट सेगमेंट स्टीनोसिस है, जिसका हम लोग 3D रोटेशनल एंजियोग्राम करके देखा है. यू कैन सी वी हैव एंटर्ड द लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी. इट्स वेरी टाइट स्टेनोसिस एंड देयर इज अ फ्लोटिंग थ्रम्बस. वेरी ट्रिकी सिचुएशन. ना मान के चलिए इसको हम लोग जब स्टेंटिंग कर रहे हैं, सपोज वो थ्रम्बस ऊपर जाता है, तो वी शुड बी रेडी टू टेक द थ्रम्बस आउट ऑफ द ब्रेन बाय मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी. वो सारे अरेंजमेंट रहना चाहिए. पेशेंट को हम लोग वाइटल मॉनिटर करना चाहिए, एडिक्वेट मेडिकेशन जो भी देना चाहिए वो देना चाहिए, एंड पेशेंट से बीच बीच में बात करते रहना चाहिए, सो दैट इफ द पेशेंट इज हैविंग एन इमिनेंट TIA और a stroke, you will be able to understand. दे बेटा दे. निमोडिपिन. निमोडिपिन. Got to check the pressure. There. Can I have an F6? So हम लोग एक डिस्टल एम्बोलिक प्रोटेक्शन डालेंगे. इसका मतलब है जैसे अम्ब्रेला जैसे ये ऊपर जाके बैठेगा, ताकि जब अगर ये स्टेंटिंग करते वक्त ये क्लॉट ऊपर जाए तो वो अम्ब्रेला या फिर फिल्टर डिवाइस में हम पकड़ के उसको नीचे ला सकते हैं. वैरायटी ऑफ डिस्टल एम्बोलिक प्रोटेक्शन आर अवेलेबल. We can have a spider, we can have a NAV6, and multiple different types are there. So I will be very comfortable when I put a distal embolic protection for doing this case. So 99% of the carotid stenting we do protected stenting. कुछ रेडिएशन से है, कुछ अदर है, जहाँ कोई एथेरोस्क्लेरोसिस इज नॉट द प्राइमरी कॉज, उसमें हम लोग फिल्टर नहीं डालने की जरूरत नहीं है. बट अदरवाइज इन एवरी केस वी लव टू पुट ए फिल्टर. Can I have the light? चलिए. ग्रीन. ग्रीन. सो हम लोग थोड़ा सा जेंटली सेप करते हुए जाएंगे. तो ये जरूरी है हम लोग के लिए कि स्ट्रोक का सिम्टम हम जाने, ताकि अगर हमारे कोई भी जान पहचान किसी को भी. कैन आई द स्क्रीन क्लोजर टू मी? प्रसाद जी हमारे बहुत कोऑपरेटिव है.
1 mag table. Right. रोड मैप ये हमारे थोड़ा सा ट्रिकी और चैलेंजिंग रहेगा. राइट. Wire is independent of the filter, so I have just crossed this. So एक बार हम फिल्टर डाल देंगे तो हम थोड़ा सेफ फील करेंगे. मैक्स मैक हम दिखाएंगे आपको फिल्टर को कैसे डालेंगे. रोड मैप आउट. तो देखिए अभी फिल्टर को हम डिप्लॉय कर दिए. आप देख सकते हैं कि जैसे अम्ब्रेला जैसे खोल गया है, ये अम्ब्रेला है. तो यहां जब हम प्रोसीजर करेंगे कोई क्लॉट ऊपर जाएगा तो उसको हम पकड़ सकते हैं. सो पेशेंट को ब्रेन में स्ट्रोक होने का चांस कम रहेगा. Dr. Muna, all clear? Yes, sir. So today we are joined with Dr. Muna, the son of the patient. He himself is an intensivist. He wanted to see the procedure with us, and we are very happy to have him. So बेटा स्टॉप. सो ये हो गया कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये हो गया लीजन, ये हो गया फ्लोटिंग थ्रम्बस, ये हो गया हमारा फिल्टर. सो वी आर वेल प्लेस्ड देयर. ओनली थिंग हम लोग को ये चीज है कि इसको थोड़ा सा लंबा स्टेंट लगेगा, तो वी विल सी व्हाट बेस्ट वी कैन डू. थोड़ा सा लाइट बैलून एंजियोप्लास्टी करके हम स्टेंट ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी स्टेंट यहां से अगर डिप्लॉय करेंगे तो स्टेंट को हम लोग जो थ्रम्बस को वॉल पे चिपका सकते हैं. सो हम लोग एक अटेम्प्ट करेंगे बिना एंजियोप्लास्टी किए स्टेंट को ले लेंगे. बाद में जरूरत पड़ेगा तो पोस्ट एंजियोप्लास्टी करेंगे. एनीवे हमारे पास फिल्टर है तो कोई डरने वाली बात नहीं. कैन यू गिव मी स्टेंट 6840. एट्रोपिन हेपरिन गिवन. प्रसाद जी सब ठीक है? प्रसाद जी आपका नाम बताइए. आपका नाम प्रसाद है? या लेफ्ट साइड कैरोटिड है, इसीलिए राइट साइड का वीकनेस है या नहीं है पूछना है. नाम पूछना है बिकॉज द मोटर स्पीच एरिया इज ऑन द लेफ्ट साइड. अगर पेशेंट नाम ठीक से बोल पा रहे हैं एंड राइट साइड को मूव कर पा रहे हैं तो सब ठीक है. पूरी अलर्ट रहना है. आपका टीम एक्सपीरियंस होना चाहिए. एंड हम लोग स्टेंट को लेके जा रहे हैं. ये सेल्फ एक्सपांडेबल स्टेंट है. जनरली हमारे पास सेल्फ एक्सपांडेबल स्टेंट्स रहता है जो कि क्लोज सेल डिजाइन हो या ओपन सेल डिजाइन हो या फिर हाइब्रिड डिजाइन हो. ऐसे 3 तरह के आता है. तो हम लोग प्लाक को डिस्टर्ब किए बिना, विदाउट डिस्टर्बिंग द प्लाक, वी हैव टेकन द स्टेंट विच इज एडिक्वेटली कवरिंग द लीजन. अभी मैं एंजियो करूंगा तो शायद मुझे कैरोटिड में फ्लो नहीं दिखेगा, इंटरनल कैरोटिड में, बिकॉज आई हैव लिटरली ऑक्लूडेड. या दैट्स व्हाट इट इज हैपनिंग. स्टॉप. स्टॉप. तो यहां ठीक है मेरा डिस्टल, या फिर चाहिए तो थोड़ा आगे भी मैं जा सकता हूं.
वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। रोड मैप आउट। तो मेरा स्टेंट जो है एडिक्वेट है, मेरा फिल्टर जो है ठीक डिस्टेंस पे है, मेरा स्टेंट खुल रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। बीचों बीच हम लोग एकदम स्टेंट को डाला, थोड़ा सा आगे लिया इसको क्योंकि इस पे फ्लोटिंग थ्रम्बस है, इसको हम लोग वॉल पे ले लिया, ये स्टेंट को लीजन पे खोला और कॉमन कैरोटिड आर्टरी में हमारे प्रॉक्सिमल एंड अच्छा से खुला है। तो अभी हमारे पास एक चैलेंज रहेगा कि ऐसा सिचुएशन में जहां इतना टाइट हो वहां हमको थोड़ा वो स्टेंट डिलीवरी सिस्टम को लेना डिफिकल्ट हो सकता है, स्पेशली आप अगर बल्कि स्टेंट यूज कर रहे हो तो वो चैलेंज रहेगा आपको। सो हियर वी कुड रिमूव इट, होल्ड इट। सी गार्ड जैसे स्टेंट अगर आप लेते हैं तो आपको थोड़ा सा प्री एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। उसका एडवांटेज है कि हाइब्रिड स्टेंट है, डिसएडवांटेज है कि थोड़ा बल्कि है। Can I have a balloon? 520, 620? Yeah, 520 is good. So far so good. बेटा DSL ఆకుండా చేయండి. DSA out. अभी देख सकते हैं आप फ्लो बहुत बढ़िया जा रहा है। और भी डीएसए करके देखेंगे, थोड़ा एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं, स्टेंट को खोल लेते हैं। अभी तक सो फार सो गुड, अच्छा दिख रहा है। ब्रेन का भी एंजियोग्राम करके फाइनली देखेंगे कोई क्लॉट अगर एस्केप हुआ है, नहीं होना चाहिए। वी हैव अ फिल्टर प्लेस विच इज जस्ट गोइंग ऑल अराउंड द वेसल। अगर कुछ मान के चलिए आपका क्लॉट चला गया है ब्रेन के अंदर, उसको भी निकाल सकते हैं और निकालने के लिए हम लोग रेडी रहना चाहिए। हमारा टीम एनेस्थेसिया जो कि ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड हियर है, जरूरत पड़ेगा तो पेशेंट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं जीए में, और ब्रेन के अंदर अगर कोई क्लॉट हो तो उसको भी निकाल सकते हैं। पर ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, क्लिनिकली एवरीथिंग इज फाइन। प्रसाद जी बात कर रहे हैं। प्रसाद जी सब ठीक है? राइट, गो अहेड। होल्ड द फायर, होल्ड द फायर। Parvati is busy. I think she is getting married again. No? Unmarried? Go ahead. Atropine given. Patient के पास रहो. Team anesthesia. Stay with the patient. Go. Gauri also watchful with the patient. Go slowly, one by one. Go. 3, 4, 6, down. सो हम लोग का कोशिश ये नहीं रहना चाहिए कि हम लोग पूरा एकदम वो वेसल क्रिएट करें. यू शुड गेट approximately 80% of the size of the vessel. This looks perfectly okay. And generally carotid पे stent जो है reocclusion का chance is very very less. देखा बेटा, AP दिखा. So you can see the stent has opened very well. तो अभी तक हम लोग क्या किया, एंजियोग्राम किया, उसके बाद फिल्टर डिवाइस डाला, उसके बाद स्टेंट किया, स्टेंट के बाद एंजियोप्लास्टी किया, एंड सो फार सो गुड. हम लोग बहुत ही सेटिस्फाइड है. अभी डीएसए कर. कॉलमेट साइड साइड. टेबल प्लीज. परफेक्ट. बहुत बढ़िया, बहुत खूब. चलिए लैटरल. बहुत अच्छा फ्लो हो गया है. स्टेनोसिस बहुत ही टाइट था. टेबल प्लीज.
हाँ, बीपी थोड़ा ड्रॉप होगा। जब भी आप कैरोटिड स्टेंट में बैलून एंजियोप्लास्टी करेंगे बीपी थोड़ा ड्रॉप होगा। फ्लूइड अच्छा सा रन करिए, टीम एनेस्थेसिया फ्लूइड रन कीजिए। नॉरेड चाहिए तो थोड़ा दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां वैगल स्टिमुलेशन होता है। वैगल स्टिमुलेशन होगा तो बीपी थोड़ा डाउन होगा, और ये जो बीपी डाउन होना ये 1-2-3 दिन के लिए भी रह सकता है, तो हम लोग इसीलिए पेशेंट को आईसीयू में ऑब्जर्व करते हैं। मोस्ट कॉमनली 1-2-3 आवर्स में सेटल होने लगता है। और कैरोटिड स्टेंटिंग के बाद हम लोग ये करते हैं कि एक पेशेंट अगर हाइपरटेंसिव है, बीपी ज्यादा है, उनको बीपी का टैबलेट ले रहे तो बीपी का टैबलेट हम बंद कर देते हैं, क्योंकि many a times the blood pressure automatically get controlled with a carotid stent there. So वो मॉनिटरिंग हम करते हैं। अभी हम लोग फिल्टर को बाहर लेके आ जाएंगे। Hold it. पूरा हम स्क्वीज नहीं कर रहे फिल्टर को, क्योंकि कोई अगर क्लॉट्स रहेगा उसके अंदर तो स्क्वीज नहीं कर देना चाहिए। तो इसको हम लोग सेमी स्क्वीज में लेके आ जाए। आपको दिखा सकते हैं हम कैसे हम लोग लेके आए इसको। अब देखिए फिल्टर को हम लोग हाफ अंदर किया है, पूरा अंदर नहीं डाला है। अभी ये फिल्टर हो गया आपका। ये देख सकते हैं इसके अंदर व्हाइट क्लॉट्स है। ये क्लॉट ब्रेन में जा सकता था। चलिए नॉरेड दो थोड़ा सा, 100 तक रखो सिस्टोलिक, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। देखिए बहुत अच्छा खुल गया है, दिखा बेटा। स्टॉप। अभी ये सिचुएशन था हमारा, इतना टाइट स्टेनोसिस था, ये पूरा खुल गया है। अभी ब्रेन का एंजियोग्राम करके देख लेते एक बार। तो इलागा प्रॉब्लम उंटे कवर ఇలాగ ప్రాబ్లం ఉంటే, స్ట్రోక్ లాగా సిమ్టమ్స్ ఉంటే, సడన్ వీక్నెస్ అయిపోతుంది, ఒక సైడ్ స్పీచ్ పోతుంది, విజువల్ సిమ్టమ్ ఉంది, కదలదు ఉంటే స్ట్రోక్ లాగా సిమ్టమ్, we should look for a carotid artery disease. If that is there, we should be able to address like this. The brain angiogram looks perfectly okay. Epicran. Right. Right. So brain का एंजियोग्राम परफेक्टली ओके है. टेबल, एपी, राइट, मैग, 1 मैग, टेबल, 12 साइड, स्टेंट देख सकते हैं आप, स्टेंट की अंदर फ्लो बढ़िया है. सो ये हो गया हमारा कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग. तो हम लोग देखें कि हम लोग लेफ्ट कैरोटिड जो कि अराउंड 95% स्टेनोसिस था, पेशेंट बहुत ही ज्यादा सिम्टोमेटिक थे, उनको हम लोग स्टेंटिंग किया, पेशेंट फाइन, प्रोसीजर वेंट वेल, everything is good. That is how we have to deal with the carotid artery disease. Thank you everybody for joining this. We will see you soon. We'll see you in Kathmandu for some live cases on the 6th of May. So that'll be on Tuesday. Right? Thank you so much.